So we are starting today the course Diabetes Education Training Manual, and we have started this July only, and this is the first batch. You are everyone. First of all, I congratulate you all on behalf of IITT and Chandalakshmi Hospital, Swasti Sukam Foundation, all of three, so that we can come up with something very special. We will manage the diabetes in a better way in India as well as abroad and our near and dear ones, right? So you all having my number as well. If you have any queries, anything, we are having the group, we can discuss the things, right? So what is diabetes? As we have discussed earlier also one time, like why it is required. 63 million people in India have diabetes. It's the second highest diabetic population in the world. The problem is widespread and it's growing out of control. We all know, right? 9 in every 100 people aged between 20 to 79 years diabetes in India. Got my point? Like every 9 people, like we can say 10% of the people are from the India. 0 to 19 age group is also having nowadays diabetes in a bigger manner, or we can say earlier we are not knowing how many, we are not diagnosing, we can say like this also, because this is called a type 1 diabetes. We were not knowing like how many people were there. And 20 to 39, yes, 40 to 59 and 60 to 79, they are more or less equal people are there. Diabetes is affecting all ages, but most diabetics are 20 to 79 years of age, and it's only getting worse. At this rate, there will be 51% more diabetic in the 2030. This is the expectations. So here comes the role of every diabetic people. We should take care of the thing to tell each and everyone and try to this cooperate and coordinate with the people to manage it in a better way. Up to 80% of expenses on diabetes treatment is for inpatient care. Like cost भी बढ़ जा रहा है हमारा, okay? 70% of those expenses is incurred through the onset of complications. Most of these complications can be avoided due to our help, our support. So health professionals could help patients detect their diabetes early. So what we can do, like during the counseling or during discussion of the patient, if they are having any history of the diabetes, or they are having the GDM, or they are having the pre-diabetes, or they are obese, or so many symptoms are there, we will discuss later on this chapter. So we can as a healthcare provider or the professional, we can take care of these things to educate the people to detect the diabetes as early as possible to overcome the side effects of the diabetes, right? Patients could take better care of themselves and with more balanced health, be more productive. Medical facilities will cost less for providing care. As we all know कि जब हमारा कोई भी कॉम्प्लिकेशंस बड़ा नहीं होगा, स्मॉल होगा, होता है ना, सिर दर्द है हमारा या हमें एसिडिटी है, एसिडिटी का कॉज हमें पता चल गया तो हम उस कॉज फैक्टर को ही अगर हम कम कर दें तो एसिडिटी आगे जाकर GERD और गैस्ट्रिक रिफ्लक्स और बड़ी बड़ी डिसीजेस में कन्वर्ट नहीं होगी. दैट वी ऑल बिकॉज ऑफ द हेल्थ प्रोफेशनल. मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगी. फिर भी आपकी कोई क्वेरीज होंगी तो आप अपने पास लिख लो या चैट बॉक्स में डाल के छोड़ दो. वी विल डिस्कस इन द एंड ऑफ द क्लास. ओके. Doctors will have more time to focus on increasing number of patients. So for diabetes, education is not just a part of treatment, it is the treatment. Okay. So we need to take care of all the things. So what we are going to cover in these modules, presently I am just taking about the module number 1. Table of content is role of the diabetes educator, team management. Today I will try to cover these 2 topics, and the module 1 we will see teaching and learning, psychological aspects of diabetes. As we all know कि देखो हमारे साथ ऐसा किसी के संग होता है ना कि किसी को डायबिटीज हो गई अगर नई तो क्या फील करते हैं वो लोग. कोई एक्सपीरियंस बताना चाहेगा अपना कि अगर किसी को डायबिटीज हो गया एक्सेप्ट ही नहीं करते ना, ऐसा होता है ना किसी के साथ? किसी ने एक्सपीरियंस किया है ये? यस मैम, और डायरेक्ट फिर 400-600 आती है जब हाँ, नहीं है ना. होती और तो उसके बाद भी वो कहते हैं हम तो मीठा खाते ही नहीं है, हमें शुगर कहाँ से हो गया.
ऐसा बहुत कॉमन है ना, हम डाइटिशियंस लोगों को रोज सुनना, इवन हमारे संग में नर्सिंग इंचार्ज भी है, तो शी कैन ऑल्सो से दिस थिंग कि बहुत सारे पेशेंट को अगर डायबिटीज हो भी जाती है, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग कि मुझे डायबिटीज हो गई है, ये बिकॉज ऑफ सम रीजन ऐसा हो गया होगा, राइट। सो हम ये सब साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स है ना डायबिटीज की, उनको कैसे हैंडल करना है, बिकॉज आई विल टेल यू सभी डिसीज, नॉट ओनली द डायबिटीज, ऑल द डिसीज आर मैनिपुलेटिव बाय अवर ब्रेन। हम अपने दिमाग से अगर खेलें और दिमाग को समझाएं कि वी आर नॉट हैविंग एनी डिसीज, तो देखिए आप बहुत जल्दी रिकवरी होती है। हम कैंसर पेशेंट्स के साथ भी इसी तरह से डील करते हैं, राइट। सेम थिंग विद द डायबिटीज, उन पेशेंट्स को भी हमें ऐसे ही डील करना है कि आप अपने आप को बहुत बीमार मत समझो। छोटी से छोटी बीमारी को अगर आप नहीं समझोगे ना, तो देखिए वो सच में कब छोटी हो जाती है पता भी नहीं चलता है। तो वी विल लर्न दीज हाउ टू टैकल दैम। मॉडल्स ऑफ फैसिलिटेटिंग बिहेवियर चेंज, वो बिहेवियर जो चेंजेस हो रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। प्रमोटिंग कम्युनिटी अवेयरनेस, एग्जिस्टिंग मिथ्स एंड बिलीव्स, research and evaluation, and monitoring the evaluation diabetes education care. These all things we will take care of the today. Okay, and I will start with the module 1. What is the role of diabetes? Okay, so diabetes educators are an integral part of the diabetes management. सबसे पहला तो आप ये समझ लो कि डायबिटीज एजुकेटर सभी को होना चाहिए जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, या जो लोग मेडिसिन से डील कर रहे हैं, या जो लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं डायबिटीज का, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्सेज हो, चाहे वो डाइटिशियंस हो, या कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो। ओके, इवन द लैब टेक्नीशियंस, इवन द ब्लड जो क्या कहते हैं आपका ब्लड बैंक से डील कर रहे हैं, सभी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को कायदे में तो डायबिटीज एजुकेटर का कोर्स करना चाहिए, बिकॉज यहाँ हम वो सीखते हैं छोटी छोटी सी पैरामीटर्स कि उनको किस तरह से हमें मैनेज करना है। डॉक्टर्स भी कई बार भूल जाते हैं कि उनको टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है, उनके वो फटाक से ये बोल देंगे अच्छा आपके आउटर एक्सट्रीमिटीज में सेंसेशन नहीं आ रहा है, ये आपकी ना नर्व्स में वीकनेस आ गई है। बट दे विल नेवर टेल यू अबाउट इन द स्टार्टिंग कि आपको कैसे टैकल करना है अपनी बॉडी को, आपको अपनी फुट की केयर कैसे करनी है, आपको अपनी बॉडी की केयर कैसे करनी है, और आपको किस तरह से अपना मैनेजमेंट करना है। तो वी विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द डायबिटीज इन दिस कोर्स. So the role of the educator is to enable people with diabetes to manage their diabetes related health to the best of their abilities, to allow them to make choices and take actions based on informed judgment, and to enhance the quality of life of the person with diabetes. Diabetes educators may come from a variety of health professions and other backgrounds. Okay, that I told you just now. While they will primarily practice within their professional roles, there needs to be some overlap with other team members as well. This means that some skills will be common to all team members. Goals क्या रहेंगे हम लोगों के? Like educators will understand that they are part of a team which include the person with diabetes at its center. Okay, and that their role is to work with other team members to improve the health and quality of life of their patients. ऐसा नहीं है कि अगर मैं डाइटिशियन हूं तो मैं सिर्फ अपने तक वो इन्फॉर्मेशन रखूं। लाइक मुझे अगर कहीं कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आई शुड एक्सप्लेन टू माय कलीग्स। प्लीज म्यूट कर लीजिएगा, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, एक्सक्यूज मी। किसका अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर लीजिए। Okay, so this is our role. I request you every participant whenever required, then only unmute yourself, otherwise disturbance will be there and another person will be. फ्रूट लोगी ना? सभी लेगी ना? फ्रूट भी लेगी, फ्रूट भी है कि मैम मैं फाइल लेगी जानती। एक मिनट रुको, मैं राधिका इज आल्सो। क्यों नहीं हो रहा यहाँ म्यूट मुझसे? जस्ट वेट। मेरा क्लास चल रहा है बेटा। नीलम म्यूट कर लो बेटा, नीलम म्यूट कर लो। यहाँ से म्यूट क्यों नहीं कर पा रही हूँ मैं आज? हम जब म्यूट क्यों नहीं कर पा रही हूँ? भाई इससे आपने एक मिनट गाइस। हाँ,
हो गया. Okay. Yeah. Sorry, huh? So, what you were saying, like educators will understand. Educators को ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हमारे टीम वर्क है. ओके, लाइक डॉक्टर, कोई भी प्रॉब्लम आया, अगर डॉक्टर को कुछ लग रहा है कि इस पेशेंट की किस तरह से केयर करनी है, तो सिर्फ एक मेडिसिन से काम नहीं चलेगा. वी ऑल नो, राइट? डाइटिशियन किस तरह से खाना प्रोवाइड कर रही है, नर्सिंग किस तरह से केयर कर रही है, वो सारा पता होना बहुत जरूरी है. लाइक इंसुलिन टाइम से दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, डाइट प्रॉपर जा रही है, कैलोरी इनटेक प्रॉपर जा रहा है, नहीं जा रहा है, वो सब हो रहा है, नहीं हो रहा है, उस पर ऑल सब डिपेंड करेगा. सो ये टीम वर्क है किसी भी पेशेंट को टैकल करने के लिए, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए. तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? At the end of this module, the participant will understand the role of the diabetes educator within the management team of people with diabetes. Especially, the participant will be able to describe the role of educator, knowledge and skills required for an educator, method of maintaining and increasing skills and knowledge, and expanding clinical role of the diabetes educator. So we all learn so many things step by step here. So the role of the diabetes educator is what? Is in the Asian region is an upcoming professional who is little known and therefore underused. अभी भी कई लोग कहते हैं अच्छा डायबिटीज एजुकेटर के क्या, तो डॉक्टर से हम पूछ कर आ गए, हमें सब पता है. होता है ना ऐसा भी? इवन डाइटिशियंस के पास भी आधे लोग नहीं आते हैं, है ना? वो कहते हैं डॉक्टर ने हमें बता दिया था, अरे मैडम खाना तो हमें जो खाना है वही खाएंगे. करेक्ट ना? राइट. So in countries where there is some awareness, diabetes educators are recognized as important members of the diabetes care team. These professionals are well known in the developed world and the profession is governed by licensing authorities. Licensed होते हैं उन लोगों के पास, स्पेशली डायबिटीज एजुकेटर का. हमारे यहाँ तो फिर भी अभी ज्यादा नहीं हो रहा है. अफ्रीकन रीजन्स वगैरह में सिचुएशन इज क्वाइट डिफरेंट, वहां बिल्कुल भी नहीं मानते हैं वो लोग. So the awareness and availability of diabetes educators need to be expanded and spread throughout the region to avail all people with diabetes and their families with the valuable services these professionals can offer. तो लोगों को समझ में आने लगेगा. जैसे देखिए पहले डाइटिशियन को भी कोई नहीं समझता था, राइट? डाइटिशियन की क्या वैल्यू होती थी? डाइटिशियन का अच्छा ही तो बस खाना पीना बताते हो, ज्यादा कुछ नहीं होता था. बट अब आज की डेट में डाइटिशियन की भी वैल्यू होने लगी और लोग समझने लगे हैं कि डाइटिशियन का रोल इज रियली वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो उसके अकॉर्डिंगली हमारा समझ आ गई है, तो लोग हमारे पास आने लगे हैं और अपने आप को बीमारियों से बचाने भी लगे हैं. तो सेम थिंग इज हैपनिंग विद द डायबिटीज. डायबिटीज का क्योंकि बढ़ने लगी है तो सब लोग समझने लगे कि हाँ, एक डायबिटोलॉजिस्ट के पास या डायबिटीज एजुकेटर के पास हमको जाना चाहिए. Okay, so the role of diabetes educator is to enable people with diabetes. You should understand. अगर कोई आपसे कह रहा है डायबिटीज एजुकेटर के पास क्यों जाना है, तो आप समझो इस बात को कि अंडरस्टैंड एंड मैनेज देयर डायबिटीज रिलेटेड हेल्थ टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज. कि आपको जो भी परेशानी है उसको आप किस तरीके से बेस्ट तरीके से मैनेज कर सकते हो, ये समझना बेहद जरूरी है. तो आप इस चीज को समझने के लिए डायबिटीज एजुकेटर के पास आप आएंगे तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंप्रूव हो जाएगी. Therefore, a diabetes educator can be any healthcare provider who has specific skills and diabetes knowledge and may come from a variety of health professions and other backgrounds also. Okay, so diabetes education has been shown to be effective and is now considered an integral part of diabetes care, and several interventions that have been shown to be cost saving. These include interventions that address prevention of diabetes, diabetes in pregnancy, and those that shifts in the initiation of insulin therapy from inpatient to outpatient settings. Okay, like diabetes in pregnancy बहुत ज़्यादा stressful होती है, तो वो हम समझा पाएंगे अच्छे तरीके से. इंसुलिन थेरेपी अगर स्टार्ट करनी है तो हम इंसुलिन थेरेपी पर भी आपको हम क्लास लेंगे, और आई विल ट्राई कि अगर मेरी किसी कंपनी से बात कर रही हूँ मैं, तो अगर वो लोग आकर हमें प्रैक्टिकल डेमो देकर हमें पूरा अच्छी तरीके से समझा पाए, है ना? नहीं तो फिर हम इंसुलिन किस तरह से देना है, क्या देना है, वो हम आपके लिए क्लास जरूर अरेंज करेंगे जिससे कि आप समझ पाओ, और कितना देना है, क्या देना है, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे. ओके, सो इन पेशेंट और आउट पेशेंट, लाइक इन पेशेंट जो है तब तो ठीक है नर्सिंग केयर कर रही है, लेकिन जब वो पेशेंट घर जा रहा है तो उसको कैसे समझाना है, तो ये भी हमें आना चाहिए कि कई बार अगर आपसे कोई डिस्कशन कर रहा है तो यू शुड नो हाउ टू टैकल विद दीज थिंग्स. ओके, इन एक्नॉलेजिंग द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, द इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन established the diabetes education consultative section to address the education needs of IDF member associations.
at this level of Asiatic region, a task force has been set up to develop a diabetes education program for diabetes educators to ensure that their knowledge of diabetes is of an acceptable level. इंडिया में एक्सेप्ट किया जाने लगा है, दैट आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट, एंड टू प्रोवाइड देम विद अ पेशेंट एजुकेशन प्रोग्राम एंड मटेरियल विच कैन बी यूज्ड टू improve patient knowledge and care. Okay, so we are taking care of all these things, right? अब अगर हम बात करें कि जो हम कंटेंट में क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहला तो फर्स्ट है कि डिस्क्राइबिंग द रोल ऑफ डायबिटीज एजुकेटर. तो डायबिटीज एजुकेटर का रोल क्या है, ये आप लोग कैसे समझोगे? फैसिलिटेटिंग एम्पावरमेंट ऑफ पीपल विद डायबिटीज थ्रू टीचिंग recommended accepted diabetes knowledge, skills and translate into behavior change. ओके तो ये हमें इतना सीखना है कि हम एम्पावरमेंट, हमें हमारे अंदर ये एबिलिटीज आ जाएं कि हम डायबिटीज के बारे में जिसको हम पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, वो सारी नॉलेज एंड स्किल्स हमारी में हो, तो हम उनके अंदर एक बिहेवियर चेंज डेवलप कर पाए, राइट? सेकेंड इज द बीइंग पार्ट ऑफ द इंटरडिसिप्लिनरी हेल्थ केयर टीम. तो हम लोग चाहते हैं कि हम जब तक बने और ड्यूरिंग दिस टाइम ऑल्सो, कि जब भी हमारे पास कोई अगर डायबिटिक पेशेंट आता है तो हम उसकी केयर प्रॉपर तरीके से करें और हम सब एक एज अ टीम मेंबर काम करें, ओके, जिससे कि हम पेशेंट की केयर बहुत अच्छे से कर पाए. लाइजिंग विद अदर हेल्थ केयर पर्सनल एंड रेफरल सर्विसेज. जब हम एजुकेटर बन जाते हैं तो हमें एक लाइसेंस एक तरह से मिल जाता है डायबिटीज एजुकेटर का, तो आप किसी के साथ में अटैच होकर एज अ डायबिटीज एजुकेटर काम भी कर पाएंगे, ठीक है? तो आपको रेफर भी कर सकते हैं डॉक्टर्स कि अच्छा आप डायबिटीज के पेशेंट्स को टैकल कीजिए. नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड बाय अ डायबिटीज एजुकेटर दैट शुड बी अंडरस्टूड एंड you should know how to describe that. Okay, broad based knowledge of diabetes, pathogenesis, diagnosis, prevention, complication and management. सारी चीजों को हमें बहुत अच्छे से समझना है और जानना है. ओके, क्योंकि जब हमें नहीं पता होगा तो हम अपने लोगों के क्वेश्चंस कैसे क्लियर कर पाएंगे, पेशेंट्स को कैसे ढंग से समझा पाएंगे. टेक्निकल स्किल्स सच एज इंजेक्शन टेक्निक, मैंने अभी बताया, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग एंड फूड केयर. ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो ना डाइटिशियन टेक केयर करती है, ना नर्सेस करती है, ना इवन डॉक्टर्स करते हैं. तो बीइंग अ डायबिटीज एजुकेटर, ये हमारा प्रोफाइल में आएगा कि हम इन सारी चीजों को प्रॉपर्ली देखें. इंटरपर्सनल स्किल्स सच एज एम्पैथी, कम्युनिकेशन, असर्टिवनेस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिसोर्सफुलनेस. सी आई एग्री कि हम डायबिटीज एजुकेटर बन गए, एडेड हमारी नॉलेज हो गई, हम समझ रहे हैं हर चीज को, पर यहाँ पर हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हमारे दिल में एक वो एम्पैथी हमेशा बनी रहे, हम कम्युनिकेट कर पाए और हम हमेशा पॉजिटिव आउटलुक में बात करें और एक रिसोर्स पर्सन फील कर पाए वो क्लाइंट हमको. इतनी नॉलेज गेन करके हमें उस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करना है, तो ये हमारी क्वालिटी में आना चाहिए. Okay, presentation, writing, interviewing skills, understanding the education process for adults and children. We will try कि हमें कुछ इस तरह के केसेस मिल जाएं जिससे कि आप उन लोगों को ये सब प्रोसेस ले पाओ और प्रैक्टिकली इस चीज को भी हम देख पाए. प्रेजेंटेशन आप सब लोग रेडी करेंगे और उस प्रेजेंटेशन को आप हमें हम कुछ पेशेंट्स को, नहीं तो हम आपस में ही पेशेंट बन के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे. अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर चेंज एंड एजुकेशन स्ट्रेटेजीज, और जो भी बिहेवियर चेंजेस हो रहे हैं, स्ट्रेटेजीज है, वो सब चीजों को हमको अच्छे तरीके से समझना है, राइट? थर्ड वन इज द मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल्स. ओके, इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं? कंटिन्यूस प्रैक्टिस एंड वर्किंग विद पीपल विद डायबिटीज एंड द कम्युनिटी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो. पहले दिन अपना हम लोगों ने ओरिएंटेशन प्रोग्राम में भी बताया था आपको कि कम्युनिटी के साथ जुड़ करके हमें सारी चीजें करनी है और हम प्रैक्टिकली भी इस चीज को हमें प्रैक्टिस करना है. अटेंडिंग ट्रेनिंग एंड अपडेट कोर्सेज. देखो, कहीं भी और भी जगह पे जो भी लिंक किसी को भी मिलते हैं या मुझे कोई लिंक मिलेगा, आई विल शेयर विद यू, तो हम उनको भी अटेंड करते रहेंगे, वर्कशॉप प्रोग्राम्स को, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को, और हम सब लोग आपस में सब एक दूसरे को शेयर करेंगे. खाली कर दो. पोटेंशियली टू बी पार्ट ऑफ ए रिसर्च टीम एविडेंस बेस्ड फॉर डायबिटीज एजुकेटर. तो हमें एक एविडेंस बेस्ड डायबिटीज प्रैक्टिस करनी है. ऐसा नहीं है कि हमें जो कुछ भी समझ में आ रहा है बस हमने कर दिया, हमें उसको पढ़ना है, समझना है, नॉलेज को तभी हम अप्लाई कर पाएंगे. अडेप्टिंग नॉलेज एंड स्किल्स टू लोकल रियलिटीज. फोर्थ वन इज द एक्सपेंडिंग रोल ऑफ डायबिटीज एजुकेटर, लॉबिंग फॉर एडवांटेज फॉर पीपल विद डायबिटीज, पॉलिसीज, कॉस्ट ऑफ केयर, नॉन डिस्क्रिमिनेशन. ओके, इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है हमको. एनकरेजिंग सपोर्ट ग्रुप्स एज वेल एज डायबिटीज एसोसिएशंस,
किसी के साथ भी अगर आपको मौका मिल रहा है, फ्री में भी काम करने का मौका मिल रहा है, जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा उस चीज को समझिए और जानिए। अवेयरनेस ऑफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डायबिटीज एजुकेशन बढ़ानी है एज मच एज यू कैन। हम लोग तो पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे और भी कई सब जगह से गेन करनी है। प्रमोटिंग डायबिटीज एजुकेशन एज एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशन। ओके, तो इस चीज को आपको समझना है। ओके, राइट। तो इस चीज के बारे में आपको और कुछ चीज पूछनी है अभी हाल फिलहाल, तो आप मुझे पूछो पहले तो, यहां तक अभी, क्योंकि अभी तो हम बेसिकली बता रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं, राइट। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? अब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ हमारा इसका सेकंड पार्ट, टीम मैनेजमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो टीम मैनेजमेंट क्या है? दिस मॉड्यूल aims to provide participants with the opportunity to consolidate their understanding of the social education, dietary and psychological requirements of people with diabetes and how they need to be met using an interdisciplinary approach. The module focuses on the professional roles required for true interdisciplinary care. It emphasizes the need of our team members to have blended rather than discrete roles and discuss the need to extend traditional roles if specialized team members such as dietitians or podiatrists are not available. The module also emphasizes the importance of ongoing education in diabetes care for all team members and establishing common protocols and management goals. Goal क्या है हम लोगों का? To provide participants with an understanding of the special need for interdisciplinary care in the management of diabetes, to highlight the expanded roles of health professionals involved in providing diabetes care. Third one is to emphasize the blended and overlapping nature of roles in a truly integrated team. Okay, so we will learn each and every aspect of sorry, thank you. Okay, so objectives क्या है हमारे? At the end of the module, the participants will have an understanding of the importance of interdisciplinary care of the management of diabetes. Specifically, the participant will be able to discuss the team approach to diabetes care, list ideal members of the team, understand the different roles of members of the team, describe how to function with available members, demonstrate the use of team approach in different settings, illustrate the ability to refer as necessary, discuss the importance of interdisciplinary communication including team meetings, identify the need for continued education for team members. अब यहाँ मैं आप लोगों को एक होमवर्क देना चाहती हूँ। अभी सब लोग अपने अपने पास या तो पेपर ले लो, ठीक है? सबके पास पेपर पेन है ना? एवरीबॉडी इज हैविंग ना? यस मैम। Yes, ma'am. तो आप लोग अभी क्या करो कि सब लोग अपने पास एक लिस्ट बनाओ। प्रेजेंट सेटअप में आपका क्या है? क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, आप घर में हो, या आपका सिंगल ऑनलाइन कंसल्टेशन चलता है, ऑफलाइन चलता है? अपने बारे में ब्रीफ में लाइक अपना नाम लिखो, लाइक व्हाट यू आर डूइंग, लाइक अटैच विद द हॉस्पिटल, ऐसा लिखो, है ना? और उसके बाद आप खुद कर रहे हो तो सेल्फ मोटिवेटिंग ऐसा लिख सकते हो, या क्लिनिक है तो क्लिनिक से एसोसिएटेड है, डॉक्टर्स के संग तो डॉक्टर एसोसिएशन। दिस इज द सेकंड थिंग। थर्ड, आप ये लिखो कि आपके साथ टीम में आप कितने लोगों को सोच सकते हो। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, जो बातें अभी मैंने डिस्कस करी हैं कि क्या कौन कौन आपको मिल सकता है, आपके आसपास कितने लोग अवेलेबल हैं, लाइक डॉक्टर है क्या, नर्सेज हैं क्या, डाइटिशियन है क्या, पोडियाट्रिस्ट है क्या, डायबिटीज एजुकेटर है क्या, आपके यहाँ कौन कौन अवेलेबल है जो कि डायबिटीज मैनेजमेंट में सपोर्ट कर सकता है। जस्ट राइट डाउन और ग्रुप में डालो उसकी फोटो क्लिक करके, सो दैट आई कैन चेक, जिससे मुझे समझ में भी आए कि हमें किस तरह की चीजों को समझाना है और किस तरह की चीजों को हमें आगे करना है। लिख रहे हो क्या सब लोग? Yes, ma'am. वेरी गुड, जिससे मुझे आगे के लिए पता चल जाएगा कि आप लोगों के पास कौन कौन से टीम मेंबर्स हैं, तो हम उस तरह से आगे अपना
और किसके पास पेशेंट्स अभी हैं कुछ डायबिटीज के, या नहीं है तो आने वाले टाइम पे आएंगे, तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि आपके पास मेंबर्स में से कितने लोग ऐसे हैं जो हमें प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए हमें पेशेंट्स दे सकते हैं, वो भी मुझे आइडिया लग जाएगा, राइट।